Good morning, children. How are you all? Today we are going to start a new chapter, that is Lesson 4, Multiplication. In this video, we are going to understand the repeated addition concept with activity. Before that, I'm going to tell you something about multiplication. Yes, multiplication has different names also, signs, and a very good things also. So, first of all, let us take a look on that. Yes, as I've already told you that multiplication is a repeated addition, and you all are very familiar with the sign of addition, which you can see in this picture also. You just need to rotate it and see what is this cross. क्रॉस रिप्रेजेंट द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. जब आप कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हो तो उसका साइन जो होता है वो क्रॉस शेप में होता है. आप टेबल्स करते हो, यू नो दैट, यू आर वेरी फैमिलियर विद द टेबल्स. टेबल्स आर नथिंग, इट्स जस्ट अ मल्टीप्लिकेशन. और रिपीटेड एडिशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन से मल्टीप्लिकेशन में कैसे उसको चेंज करते हैं, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. Parts of multiplication. Children, you should know about this. You should know the names ki how we are going to represent. The starting word which is written on the top of the number, that is multiplicand. इसको हम मल्टीप्लिकेंट कहते हैं. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की स्पेलिंग ऊपर है, उसका लास्ट में केशन हटा के उसको कैंड कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेंट. ये मल्टीप्लाई होने वाला है. नेक्स्ट इज द मल्टीप्लायर. ठीक है, किससे वो मल्टीप्लाई होगा? मल्टीप्लाई मतलब जो बढ़ता जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है. एंड द आंसर विच वी गॉट, दैट इज प्रोडक्ट. उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, जो आंसर हमें मिलता है. ठीक है, सो चिल्ड्रन लर्न दीज नेम्स: मल्टीप्लिकेंट, multiplier, and product. Yes, when we are going to do the questions like problem sums, multiplication stories, आपको इस तरह के words देखने को मिल सकते हैं. With the help of these words, you can better understand कि yes, we are talking about multiplication. First, the sign. आपको साइन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है. टाइम्स, अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइम्स, 2 times, 3 times, that means it's a multiplication question. Multiply, मैंने आपको बताया. Multiplied by, it is also related to multiplication. किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं. ऑफ, ठीक है, 3 ऑफ 4, इट्स ऑफ डिनोट्स द मल्टीप्लिकेशन साइन. प्रोडक्ट ऑफ, क्या उसका प्रोडक्ट कितना निकला, तो भी ये आपको मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करता है. टॉयस, कोई भी चीज़ दो गुना. डबल भी सेम थिंग है, कोई भी चीज़ आप डबल करते हो, दैट इज ऑल्सो डिनोट द मल्टीप्लिकेशन. नाउ in this question you can see there is 4 multiplied by 3 is equal to 12. Okay, 4 represent the group, okay, and 3 represent in each group. हर एक ग्रुप में कितना है? You can see in this picture that there are 4 circles. In each circle there are 3 apples. तो 4 सर्कल ये आपको डिनोट कर रहा है कि कितनी ग्रुप्स हैं आपके पास और हर ग्रुप में कितनी एप्पल्स अवेलेबल हैं, दैट इज़ इन ईच ग्रुप. ठीक है, तो हम इसको रिपीटेड एडिशन में कैसे करेंगे? 3 + 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 12. दिस इज कॉल्ड रिपीटेड एडिशन. आपने सारे एप्पल्स को काउंट किया, दिस इज एडिशन. रिपीटेड एडिशन, आपने देख लिया कि हर ग्रुप में 3-3 है, आपने हर 3 को लिखा, एंड देन यू यूज़ योर फिंगर्स और योर ब्रेन और एनीथिंग और जस्ट पेंसिल जस्ट टू काउंट इट. आपने उसे काउंट किया एंड यू विल गेट द आंसर. बट when we change the repeated addition in the multiplication, we write it like this. That is 4 कि कितने ग्रुप्स थे
and multiply by 3. हर ग्रुप में कितने थे? तो that is 12. Now, to understand the concept of group and each group, I have a beautiful activity for all of you. Let us start that activity and understand the repeated addition and how we change it into the multiplication. So, let's get started. Okay, let us understand the repeated addition with this beautiful activity. As you can see, I have 3 friends who come to visit me and I love to serve them tea and biscuits. तो tea afterwards पहले हम उनको biscuits दे देते हैं. तो I serve them 2 biscuits to 3 of them. Okay, I serve them 2 biscuits each. Can you count these biscuits? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many biscuits I have? 6 biscuits. अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कैसे लेते हैं और रिपीटेड एडिशन में कैसे करते हैं? As I have already show you in the presentation that 2 biscuits plus 2 biscuits plus 2 biscuits. Total 6 biscuits. This is repeated addition. How we convert into the multiplication? अब आपको करना कैसे है? आपको ये याद रखना है कि ग्रुप क्या होता है, टाइम्स क्या होता है, जो मैंने आपको अभी पिक्चर में दिखाया भी था. ग्रुप्स मीन्स द थिंग यू हैव डिवाइडेड इक्वली. ओके, लाइक 2. यू हैव डिवाइडेड 2 बिस्किट्स टू ईच ऑफ देम. 2. जस्ट टेक 2 टाइम्स. हम कितने बार आपने दिया उसको? 2 टाइम्स. तो ये आपका क्या हो गया? दैट इज दिस इज अ ईच ग्रुप. अब ग्रुप कितने थे? हाउ मेनी पीपल देयर आर 3 पीपल. ठीक है, तो 3 पीपल को हम लोगों ने कितनी चीजें प्रोवाइड की? 2 थिंग्स. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पीपल आर देयर. 3 लोगों में हमने 2 चीजों को दिया. इक्वली वी हैव डिवाइडेड देम. सो 3 people means 3 groups. 3 group of people multiply by each group. How much things we have given? 2 biscuits means 3 multiply by 2. That is 3 2s are 6. 3 2s are 6. 3 people 2 things 3 times. ठीक है, तो हमने उनको प्रोवाइड किया. तो 3 times 2 is equal to 6. 3 multiplied by 2 is 6. This is called repeated addition. You should not confuse कि पहले क्या आना है, बाद में क्या आना है. जितने लोगों में आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट को या कोई भी सामान को, like 3 people are there, तो they are group. Okay, they are group of people. Then in each group how much you have given. ठीक है, आपने हर एक पर्सन को कितना दिया, दैट इज द टाइम्स. लाइक 1 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 4. इफ आई वॉन्ट टू चेंज समथिंग हेयर, अगर मेरा एक फ्रेंड चला गया एंड आई वॉन्ट कि उसका जो सामान है, जो उसका बिस्किट है, आई इक्वली डिवाइडेड अमंग दीज 2. ठीक है, मैंने इनको दे दिया. नाउ हाउ मच? 2 पीपल. ठीक है, 2 लोगों को मैंने 3 चीजें प्रोवाइड की. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3. सो सी द थिंग्स आर चेंज. है ना, एकदम से चीजें आपकी चेंज हो गई. अब इनके पास 3 चीजें हैं, तो 2 ग्रुप हो जाएगा. 2 ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग 3 थिंग्स. दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3. आंसर विल बी द सेम. 2 multiplied by 3 is 6 and 3 multiplied by 2 is also 6. Answer will be same, but the question is totally different. This will help you to solve the problem sums, the multiplication stories. Okay, I hope you are able to understand this concept of repeated addition. Thank you so much.